Hi guys, welcome to Miracle GS YouTube channel. This is Prafulla. Today I am going to discuss second video of direction series. So in this video I discuss type 3, type 4 and type 5 questions regarding direction test. So before we start the topic, let us understand basic concept related to angle. देखिए ये आपका सर्कल है. This is equal to 360 degree. So one circle is equal to 360 degree. If we divide this circle horizontally, then this part is 180 degree and this part is also 180 degree. And if you again divide it vertically, then this part is 90 degree, this part is 90 degree, this part is 90 degree and this part is 90 degree. So this angle is applicable in direction. That means from north to east, this is equal to 1/4 of a circle, that is 90 degree. That means north to east this part is 90 degree, east to south this part is 90 degree, south to west this part is 90 degree and west to north this part is 90 degree. देखिए north and northeast, so this part is equal to 45 degree, that is the half of 90 degree. So it is 45 degree, it is 45 degree, so this is equal to 90 degree. So from southeast this one is 45 degree, from southeast to south this one is 45 degree. So that's why from east to south this part is 90 degree. So likewise this is 45, 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 total 360 degree. So this is the basic concept related to angle. So let us see some problems. The question is, a man is facing south. He turns 135 degree in the anti-clockwise direction and then 180 degree in the clockwise direction. And your question is, which direction is he facing now? देखिए पहले डायरेक्शन ड्रा कर लीजिए. ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट. देन क्वेश्चन इज, ए मैन इज फेसिंग साउथ, दैट मीन्स ही इज फेसिंग इन दिस डायरेक्शन. He turns 135 degree in anti-clockwise. देखिए this movement is called clockwise and this movement is called anti-clockwise. He moves कितना डिग्री? 135 डिग्री. देखिए this one is 90 degree, from south to east this one is 90 degree, then this one 45 हो गया आपका 135. 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135. देखिए 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री. सो now the person is moving in northeast direction. Then he turns 180 degree in the clockwise direction. Then again he turns clockwise direction कितना डिग्री? 180 degree. Clockwise means in this direction. 180 means now he is in this direction, south west. ये 45, ये 90, ये 45 हो गया. 45 प्लस 90 प्लस 45 हो गया 180. So now the answer is southwest direction. Now the person is facing towards southwest direction. So चलिए देखते हैं another question. देखिए a man is facing north. First he turn 45 degree in clockwise direction. So CW means clockwise direction. Then he turns 90 degree in ACW means anti-clockwise direction. And finally he turns 135 degree in clockwise direction. Now in which direction he is facing? देखिए पहले डायग्राम बना दीजिए. ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. देखिए a man is facing north, that means in this direction. First he turns 45 degree in clockwise direction, that means here 45 degree,
नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका 45 डिग्री डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज। तापर देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। देखिए ये 45, ये 45 एंड दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉक डायरेक्शन। देन finally he turns 135 in clockwise direction. So this is his position now. He moves 135 in clockwise direction. Clockwise direction means either कितना 135। देखिए ये 45, ये 45, ये 45 हो गया आपका 135। So now he is in east direction, इधर से इधर कितना ये होगा 135 डिग्री। सो योर आंसर इज ईस्ट डायरेक्शन। सो चलिए देखते हैं क्विकली कैसे इसे सॉल्व करें। देखिए ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आप इसे नॉर्थ लिख लीजिए। देन ही फर्स्ट टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री CW क्लॉकवाइज। देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री ACW एंटी क्लॉकवाइज। देन फाइनली टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज। आप एक काम करिए 45 क्लॉकवाइज एंड 135 क्लॉकवाइज को ऐड करके 95 एंटी क्लॉकवाइज से माइनस कर दीजिए। देखिए कितना हुआ 45 प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री ये क्लॉकवाइज, इससे माइनस कर दीजिए 90 डिग्री ACW इज इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सो इसे कट कर दीजिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपस में कैंसिल होने के बाद रह गया आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सो 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मीन्स ईस्ट हो गया आपका आंसर। ये हो गया नॉर्थ, सो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ईस्ट, सो ईस्ट हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं अनदर एग्जाम्पल। आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन। देखिए ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ही टर्न्स 45 डिग्री clockwise and moves certain distance. Then he turns 90 degree anti-clockwise and moves certain distance. Then he turns 45 degree anti-clockwise and moves certain distance. Then again he turns 45 degree anti-clockwise and moves certain distance. Then again he turns 45 degree clockwise and moves certain distance. Then in which direction he is facing now? देखिए अब क्या करें, उसको कैंसिल कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज कैंसिल। हियर 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो कैंसिल। रिमेनिंग इज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए द मैन इज फेसिंग ईस्ट, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन। So remaining is 90 degree anti-clockwise. So 90 degree anti-clockwise means north direction. So now he is in north direction. This is your answer. So in this way you can solve this question quickly. चलिए देखते हैं type 4 question related to distance and directions. देखिए question is a man is going towards east. After walking 75 meter, he turn his left and walk 25 meter, and again he turn his left and walk 35 meter, and finally he turns his left and walk 25 meter. There are three possible questions. Question number 1, in which direction is he moving now? Question number 2, how far he is from his starting point? And question number 3, both 1 and 2. That means in which direction he is moving now and how far he is from starting point. ये कौन सा डायरेक्शन में अभी जा रहा है और कितना दूरी पर है फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ कैन बी आंसर इन शॉर्टकट वे। देखिए ही इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट कितना टर्न लिया, लेफ्ट टर्न, देन अनदर लेफ्ट टर्न, देन फाइनली ही टर्न हिज लेफ्ट, 3 लेफ्ट टर्न। So here 3 left turn,
सो नाउ इज इन ईस्ट डायरेक्शन। सो ईस्ट का 3 लेफ्ट टर्न क्या होगा, देखिए ही इज इन ईस्ट डायरेक्शन, लेफ्ट टर्न, दिस वन इज राइट टर्न, दिस वन इज लेफ्ट टर्न। सो 3 लेफ्ट मतलब 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, दैट मीन्स ही इज इन साउथ डायरेक्शन। सो दिस आंसर इज साउथ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर विदाउट मेकिंग डायग्राम, सो यू हैव टू मेक डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम करना पड़ेगा, कंपलसरी है। देखिए ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, दैट मीन्स ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न्स हिज लेफ्ट, दैट मीन्स दिस वन इज 75 meter, he turns his left and walk 25 meter, so his left means this one is 25 meter. Then again he turn his left and walk 35 meter, so his left means इधर चलना, कितना 35 meters. And finally he turn his left and walk 25 meter, दैट मीन्स हिज लेफ्ट मीन्स इधर। देखिए ये हो गया आपका 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, दैट मीन्स द पर्सन इज इन द ओरिजिनल वे। सो योर क्वेश्चन इज हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स लेट बी टी पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है। देखिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज इक्वल टू 75 meters, and from this point to this point is equal to 35 meters, that means this portion is equal to this portion. So here if you subtract this portion from the entire portion, you can find out this portion, that means 75 minus 35 is your answer, that is 40 meters. So your answer is equal to 40 meters. देखिए द क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। योर आंसर इज इन साउथ डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ एंड ही इज 40 मीटर फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए देखते हैं अनदर क्वेश्चन। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और सॉल्व दिस क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए बी सी, 3 vertex and 3 side, ए बी one side, बी सी another side and ए सी another side, and ए बी सी angle is equal to, this is 90 degree. A right angle triangle बी सी is equal to base, ए बी is equal to perpendicular or height and ए सी is equal to hypotenuse. देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम ए कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। हो गया अंडरस्टैंड। चलिए सॉल्व करते हैं दिस क्वेश्चन। ए पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देखिए 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज 1 किलोमीटर, देन टर्न साउथ एंड मूव 8 किलोमीटर। सो साउथ मीन्स निचला डायरेक्शन, ये हो गया आपका 8 किलोमीटर, नाउ इन दिस डायरेक्शन, and then turns east and walk 2 kilometer, that means east means इधर कितने 2 kilometers, and finally turns towards north and move 12 kilometers. So north means ऊपर 12 kilometers, 12 kilometers. So question is now how far he is from starting point. So here is his starting point, here is his end point. So क्वेश्चन पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितना है। सो देखिए दिस वन इज 2 किलोमीटर, दिस वन इज ऑल्सो 2 किलोमीटर,
So this is your right angle triangle. Let it be A B C. So ABC is a right angle triangle. A B C, ये इसका बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेनस है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी. देखिए ए सी स्क्वायर ए और सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. देन पुट द वैल्यू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना होगा, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, टोटल हो गया 3 किलोमीटर. दैट मीन्स 3 रो स्क्वायर प्लस बी सी कितना होगा, ए बी सी टोटल हाइट कितना, ये 12 किलोमीटर. ये टोटल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मीन्स 12 किलोमीटर एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर. सो बी सी कितना होगा, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर. सो बी सी इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 4 स्क्वायर. So now AC square is equal to 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16. So AC square is equal to 9 plus 16 25. So AC is equal to 25 root over is equal to 5. So your answer is 5 kilometer. This one is 5 kilometer. So now he is 5 kilometer from his starting point. Can answer this type of question in this. चलिए देखते हैं टाइप 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन चेंज. देखिए क्वेश्चन इज इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी वेस्ट. देखिए ये आपका मेन डायग्राम है, 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन. क्वेश्चन ए कह रहा है इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, here is southeast and here is north. If southeast become north and northeast become west, ये northeast become west and so on, then what will be west. देखिए एक डायरेक्शन जितना डिग्री चेंज होगा हर डायरेक्शन उतना डिग्री ही चेंज होगा. देखिए पहला क्वेश्चन, if southeast become north, here southeast here north, so कितना डिग्री डिफरेंस, 45 45 45 is equal to 135 degree anti clockwise movement. and north east become west, देखिए ये north east ये become west, here also 45 45 45 is equal to 135. so equal distance में हर direction change होगा. so your question is what will be west. so west direction ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा 135 डिग्री. हियर इज 45 45, हियर इज 45. सो वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट. सो योर आंसर इज साउथ ईस्ट. सो यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस वे. सो दैट्स इट फॉर नाउ. फिर मिलेंगे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद.